जय गुरु जी। सारी संगत का गुरु जी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरु जी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਦ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਪਾਈਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਸਦਾ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਸਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਣਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੀਨ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਛੁੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲਊਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੇ ਛੁੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਬੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ। ਬਟ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਡਿਵਾਈਨ ਸਤਸੰਗ, ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਲਦੋ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਇਆ। ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਚੂੜਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਟ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ, ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ। ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਛਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਚੈਨ, ਬੜਾ ਹੀ ਡਾਮਾਡੋਲ, ਬੜਾ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਤੂਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੜਵਾਹਟ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੋਰਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕਟਵਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹ ਕਟਵਾਣੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ।
ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ 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 ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰਮੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਥੋੜਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸਰ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपनी प्यारी संगत के बीच में शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी जब मैं आज सुबह पूजा कर रही थी मंदिर में, तो मेरी माचिस ना जैसे कूलर से अंदर कमरे में सीलन इतनी हो गई बहुत ज़्यादा, और तो एकदम गीली हो गई थी। तो उसमें वैसे भी दो दो ही तिली पड़ी थी, बाकी नहीं माचिस थी। मैंने सोचा चलो उसी से ही मैं
गुरु जी का दीपक जला लूँ। मैंने मसाला भी नहीं था, मैंने उसको जलाई, वो जली नहीं, और अचानक अलग से हाथ में ली हुई थी ना, तभी वो एकदम से जल गई। मैंने बोला शुक्राना गुरु जी, आपने जलवा दी माचिस, यानी कि मुझे ऐसा लगा ये गुरु जी की प्रेजेंस थी जो दिखा रहे थे गुरु जी की मैं तेरे पास ही हूँ, अंग संग सहाय हूँ। तो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। और जब मैं मंदिर गई तो मंदिर में संगत जी मुझे क्या दिखा, एक पैर का बिछुआ जो होता है ना, वो पड़ा हुआ था वहां पर। जब मैं शिव मंदिर जल सिलाने गई तो मैंने वो बिछुआ देखा। मैंने, हो सकता है कोई आई होगी यहाँ जल सिलाने वगैरह आती होंगी, तो उनका किसी का निकल गया होगा। मैंने अपने पूजा वगैरह की और अपने घर पर आ गई। और फिर मुझे जैसे गई हुई थी मैं काम से, तो मुझे आज हॉस्पिटल जाना था। जो मैंने पिछले सत्संग में शेयर करा था ना, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो गुरु जी मेरे साथ थे, गुरु जी की ब्लेसिंग मेरे साथ थी, हॉस्पिटल भी बिल्कुल खाली मिला था। मैंने सब कुछ पिछले सत्संग में शेयर किया था अपनी प्यारी संगत के बीच में, संगत परिवार को बताया था। तो आज मुझे वहाँ जाना था। मैं कि सुबह जाऊंगी तो भीड़ भी मिलेगी, मेरा दिन भी हो जाएगा। तो मैं दोपहर के टाइम 12:30 तक पर्ची बनती है, तो मैंने सोचा मैं 12 बजे तक वहाँ से निकल जाऊंगी। तो 12 का टाइम हो गया था, तो मैंने अपनी मैम को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे वहाँ जाना है, तो मैं हॉस्पिटल, तो मैं हो आती हूँ। 12 बजे जब वहाँ से निकली तो वहाँ से मुझे इनके दूर का ही रास्ता है। तो मैंने जल्दी जल्दी मैंने रिक्शा पकड़ी। रिक्शा में मुझे बहुत देर लगी, देख के वहाँ हो गए मुझे 12:10 हो गए। फिर मैंने बोला मैं पता नहीं 20 मिनट में वहाँ पहुँच पाऊंगी, ट्रैफिक भी जाम मिलेगा। फिर आगे की साइड में उस तरफ बारिश भी थी, जो हमारे यहाँ इधर नहीं थी बारिश, लेकिन आगे हो रही थी। तो संगत जी उसने एकदम से फिर 10 मिनट वहाँ हमारे खराब करके रिक्शे में से उतार उतार दिया कि दूसरा रिक्शा पकड़ लीजिए और मुझे नहीं जाना। उसके मन में जैसे लालच आ गया दूसरी सवारी देके दूसरी जगह की, तो इस वजह से तो मैंने दूसरे रिक्शे वाले को बोला। तो जो वो सवारी जा रही थी उन्होंने गुरु जी की ही मेहर थी। मैंने गुरु जी से बोला था कि मुझे आप ही टाइम से पहुंचाएंगे गुरु पापा, आप ही मेरे साथ रहेंगे। तो गुरु जी ने उस रिक्शे वाले के पता नहीं क्या मन में हुआ, उसको तो आधे रास्ते जाना था, लेकिन उसने आधा रास्ता और ज़्यादा कवर करा मेरी वजह से। उसकी 3 सवारी जो बैठी थी वो तो उतर गई। फिर बाद में बहन जी करके वो मुझे वहीं पर रोड तक उतार के गया। मैंने उससे बोला, जब उसने पहली सवारी उतारी, मैं 10 मिनट रह गए, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, 12:30 तो पर्ची खत बंद हो जाती है। तो मैं कि गुरु जी, अब मन ही मन में गुरु जी का मतलब जाप कर रही थी। मैं कि गुरु जी कहीं टाइम ना निकल जाए और मेरा टाइम भी खराब जाए और पैसे भी वेस्ट जाए मेरे। तो उन्होंने जैसे वहाँ पहुँचाया, मुझे कह रहा नहीं बहन जी 10 मिनट तक हम पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ी और आगे करके मुझे वहाँ उतारा और बोला कि इधर से बस सीधे निकल जाना, यहीं पर आगे ही वो है हॉस्पिटल। तो मैंने उधर का रास्ता मुझे पता नहीं था। फिर मैंने वहाँ से और आगे वो रिक्शे वाले से पूछी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि आप उल्टे के कान इधर ही है हॉस्पिटल। तो मैं उधर गई, वहाँ पर देखा तो काउंटर बंद हो चुका था। वहाँ पौना एक, यानी कि 1 बजने में 20 मिनट हो रहे थे। अब उन्होंने बोला कि ये तो बंद हो गया है और अब तो शाम की पर्ची बनेगी 1:30 बजे की। मेरा परेशान में कि क्या करूँ, मेरा तो फिर आना वेस्ट होगा। मगर मुझे दिल में वो नहीं हो रहा था, फीलिंग नहीं आ रही थी कि हाँ मेरा काम नहीं हो पाएगा। मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने पहले तो इधर देखा काउंटर को, 5 मिनट में कहीं से कोई काम बनता है। तो फिर मैं अचानक मेरे मन में जिस कमरे में दवाई देते हैं, जो हमारे मेडिसिन वगैरह लिखते हैं, मैं वहाँ जाती हूँ। मैं वहाँ गई, वहाँ 3 डॉक्टर्स बैठे हुए थे। मैंने उनको पर्ची दिखाई, मैंने उनसे बोला कि माने मैं लेट हो गई। तो वहाँ 2 डॉक्टर, एक डॉक्टरनी, इनके एक लेडीज और 2 जेंट्स डॉक्टर थे। तो उन्होंने मेरी पर्ची ली, बोलो क्या हुआ। मैं कह रही ऐसे ऐसे मेरे बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, और मैं पहले भी दवाई ले गई थी, अब मैं ज़रा थोड़ा लेट हो गई आने में। तो डॉक्टर्स दो दूसरे डॉक्टर को बोला ये कि भेज दो वापस, पहले इसमें पर्ची में डेट नहीं डली, तो हम पर्ची में क्या दवाई लिखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ बिना उसके ऐसे करते नहीं है ना। पहले डेट डलवाते हैं, उसके बाद जो आगे डॉक्टर्स देखते हैं। डॉक्टरनी के बेचारी के जैसे गुरुजी ही जैसे विराजमान हो उस टाइम, उन्होंने कुछ नहीं बोला और खुद ही ने बेचारी ने डेट लिख के अपने हाथ से, तो और उन्होंने मेरी मेडिसिन वगैरह उस पर लिख दी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नज़दीक ही था मेरे लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग ही थी जो इस तरह मेरा काम गुरुजी ने करवा दिया। तो मैंने बहुत खुशी हुई, मुझे मेरे गुरुपा ने मेरा काम ये करवा दिया, मेरा आना यहाँ वेस्ट नहीं गया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना।
तो वहाँ से जब मैं वहाँ से आई और मैंने अपनी दवाई वगैरह ली, वहाँ से दवाई लेके मैं निकली बाहर, तो बाहर ही एक रिक्शे वाला फ़ोन पर बात कर रहा था, क्योंकि वहाँ का दूर का पड़ जाता है, तो हमारी तरफ के रिक्शे कम मिलते हैं। तो रिक्शे वाला बात कर रहा था, मैंने उनसे बोला कि वहाँ जाना है आपको? तो उन्होंने बोला कि कितने रुपए सवारी है? मैंने बोला कोई बात नहीं, आप छोड़ देना वहाँ पर। तो मैं जैसे बैठी, तो उन्होंने जब भी रिक्शा चलाना जैसे स्टार्ट करा, तो साइड में ही देखा, तो एक जो ये होता है ना विक्रम गाड़ी जा रही थी, उस पे लिखा था गुरुजी। तो मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी की ब्लेसिंग मेरे पल पल मेरे साथ है, मेरे गुरु का शुक्राना शुक्राना। तो मैंने वहाँ बोला जय गुरुजी। और मुझे आज का दिन इतना वो रहा मेरे लिए। और मैंने जब मैं अपने घर पर आई, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बताया कि आज मैं जब गई, तो मैंने ये बोला था गुरुजी आप भी संभालो, गुरुजी मेरे साथ रहेंगे। तो गुरुजी ने मेरा ये सारा काम मेरा गुरुजी ने बनवाया। उसके लिए अनंत शुक्राना, मेरे पल पल संग संग सहाय रहने के लिए शुक्राना। और जैसे मैं इसमें सुन रही थी ना सत्संग वगैरह, मैं मोबाइल में लगी रहती, बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं, बहुत सत्संग सुनती रहती हूँ। कोई तो मेरा जैसे आधा भी छूट जाता है कई बार किसी काम की वजह से, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, सॉरी गुरुजी, ऐसे बोल देती हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि आधा मेरा रहता है, तो मैं बाद में कवर कर लेती हूँ। तो वो मेरा, मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से बात करी थी, तो मैंने फ़ोन ऐसे रख दिया, तो बाद में खोला तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तेरे पेट में ना एक बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है, और तू मेरे टेलीपैथी और इसके मैसेज के जो ज़रिए मैं तुझसे बात करता हूँ, तो इसको मजाक समझती है। और ये सत्संग सुन और अपना संकट जो हैवी जो बीमारी है उसको ख़त्म कर। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, आप इतना वो करते हो। तो मैंने वो सत्संग सुनने लगी, तो फ़ोन में मेरे पता नहीं इतने सालों से मैं फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं फ़ोन में क्या है, जैसे गुरुजी ने अलग से, मैं उसको ऊपर नीचे कर रही थी, मैंने अपनी बेटी को आवाज़ दी, मैं देखना मुस्कान क्या क्या आ रहा है बेटा इसमें। तो उसने देखा, तो उस पे बटरफ्लाई वगैरह, गुड वगैरह ऐसे वगैरह लिखा रहा था, उस पर कुछ बार लंबा मैसेज भी आया था। मैं पढ़ एकदम से उसने जैसे ऊपर नीचे करा, तो काफ़ी देर तक रहा था उसमें बटरफ्लाई न्यूज़ वगैरह, ऐसा कुछ ऐसा लगा था जैसे गुरुजी की ही तरफ से आया है। लेकिन पहले कभी मैंने फ़ोन में ऐसा सिस्टम नहीं देखा। तो गुरुजी जो भी टेलीपैथी के माध्यम से मुझे बताना चाहते थे, उसके लिए गुरु का अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। और आपने बोला है कि एक लंगर भी होने वाला है, और मैं उसमें तुझे दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। तो ये शक्ति तो मुझे गुरु आप ही देंगे कि मैं आपको पहचान लूँगी। और मेरी बेटी को भी कल सपना दिखाई दिया था कि घर में सत्संग हो रहा है, और वो मैं सबको जैसे लेडीज़ को बुला रही हूँ, अपने बच्चों को बुला रही हूँ, ऊपर से नीचे में सत्संग करवा रही हूँ अपने ग्राउंड फ्लोर पर। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी अपनी नाती की तरफ से जो मेरी बेटी है उसकी तरफ से शुक्राना, अपनी इस बेटी का भी शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और सब पर इसी तरह मेहर बनाए रखना मेरे गुरु का। सब दुखियों के दुख दूर करो मेरे गुरु महाराज, जो अपनी गृहस्थी सब अच्छे से चला सके मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा से मेरी मम्मी की एक रिपोर्ट आनी थी, जिसके अंदर बहुत डर लग रहा था मुझे कि उसकी क्या रिपोर्ट आएगी, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी ना हो जाए, कहीं एडमिट ना कराना पड़ जाए। लेकिन मेरे गुरु जी की ऐसी अपरंपार कृपा है कि आज हम डॉक्टर को दिखाने गए, तो उन्होंने 10 डेज़ की मेडिसिन दी और उससे ही उनको उन्होंने बोला रिलीफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरी बेटी की भी ना बहुत दिक्कत हो रही थी, उसकी भी छोटी मोटी परेशानियाँ होती, उसके भी मैंने सारे बॉडी टेस्ट कराए, उसमें भी कोई परेशानी नहीं आई। उसकी भी आज मुझे मेडिसिन में लेकर आई होम्योपैथी,
उसके लिए भी गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और गुरुजी मैं हमने अपनी नंद के लिए भी रिश्ता देखा था, आपसे अरदास की थी कि हाँ उसका पक्का हो जाए। गुरुजी आपकी कृपा से उसका भी रिश्ता यहाँ पर हाँ दोनों तरफ से हो गए। गुरुजी कृपा करना, अपनी मेहर बनाए रखना। प्यारी सास संगत जी, गुरुजी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई और मेरा सत्संग पूरा नहीं हो पाया। मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। गुरुजी आपकी ही मेरी कृपा से मेरे पति अंकल की भी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आगे सुधार मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत दिक्कत है आप वो भी लेकर आएंगे और उनके काम में भी बरकत और डलवाएंगे। आप कर रहे हो बरकत, मुझे पता है गुरुजी। और बस मुझे उम्मीद नहीं छोड़नी, हमें आपका साथ मिल गया गुरुजी, सब कुछ मिल गया। बस गुरुजी मेरी एक बड़ी इच्छा है कि 7 जुलाई को ना मेरा कहीं सत्संग पे जाने को बड़ा मन है। तो गुरुजी मुझे पूरी उम्मीद है कहीं ना कहीं से भी सत्संग का बुलावा आ जाए। प्लीज़ गुरुजी भेज दो, क्योंकि ना बड़े मंदिर तो गर्मी में बच्चों के साथ या कहीं जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर मन होता है, मुझे पता है आप कोई ना कोई जुलाई में सत्संग का बुलावा ज़रूर भेज दोगे। और गुरुजी मेरी भी जो छोटी मोटी कोई दिक्कत है इसको प्लीज़ आप ठीक कर दो, अच्छी हेल्पलेस करो। आप बार बार मुझे संकेत दे रहे हो कि बच्चों पर संकट तेरे पुत्र पर मंडरा रहा है। जो भी गुरुजी कोई ऐसी है ना जो काली क्रिया करते हैं, जादू टोना करते हैं, प्लीज़ गुरुजी देखो हमें ना पता नहीं है, हम कैसे मतलब हम जान नहीं सकते। आप तो जाने जान हो गुरुजी, ऐसे लोगों से ना हमें बिल्कुल दूर कर दो। और ना जो नेगेटिव लोग हैं ना उनको हमारे निकट आने ही मत दो गुरुजी, ऐसी कृपा करो। और बाकी सारे काम हमारे पूरे कर दो गुरुजी, अपने चरणों से जोड़े रखना। बस आप मिल गए हमें, सारी समझ लो खुशियाँ ही खुशियाँ मिल गई। अब आपका साथ हमने पकड़ लिया, आपने हमारा हाथ थाम लिया, तो हमें पूरी उम्मीद है गुरुजी आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, हर पल आपका नाम लेकर मैं अपने सारे काम की शुरुआत करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे काम भी पूरे होंगे और मेरा साथ भी आप ज़रूर दोगे। मुझ पर, मेरे दोनों बच्चों पर, मेरे पति अंकल पर, मेरी मम्मी पर, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय, गुरुजी शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आपने दिया कि तेरे रसोई घर में काम करते वक्त ध्यान से किया कर। गुरु जी आपने ये दिया कि क्या कहते हैं, तेरे घर में कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसे तू तुरंत हटा, उन चीज़ों पर ही ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुपा मैं तो सत्संग सुनी गुरुपा पूरा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया गुरुपा, आप निकलवा दो प्लीज़ गुरुपा। वो क्या चीज़ें हैं गुरुपा, आप निकलवा दो गुरुपा। मैं अपनी तरफ से जो भी एक्स्ट्रा देखती हूँ गुरुपा सब हटा देती हूँ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा आप वो सामान मेरे हाथ पकड़ के निकलवा दो गुरुपा। नहीं वो रह जाएगी गुरुपा तो हमारे घर में थोड़ा कलेश वगैरह हो जाता है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मदद करना गुरुपा, वो सामान सब नकारात्मक चीज़ें सब हटवा दो गुरुपा। जो जहाँ रखी हो गुरुपा, आपने बोला वो सब सामान हटा गुरुपा। मुझे नहीं पता, ससुराल पक्ष से किया हुआ है, उन चीज़ों में ही ससुराल पक्ष से करके दिया हुआ है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा प्लीज़ हटा दो आप गुरुपा, हटा दो प्लीज़ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम मंत्र जाप गुरुपा रह गया था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा अभी तो गुरुपा मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ पाती गुरुपा। मैं छोड़ तो मैंने सब कुछ आपके दिया कि गुरुपा आप जो करना सही करना गुरुपा, लेकिन गुरुपा मैं रहती हूँ वो जैसे ही वो औरत बाहर निकलती है गुरुपा, ये तुरंत अपने आप निकल जाते हैं गुरुपा। ऐसा कैसे हो जाता है गुरुपा, पता चल जाता है गुरुपा। और वो तुरंत निकल, वो बाहर रहेगी तो ये तुरंत निकल के आके गुरुपा देखते रहेंगे गुरुपा, तो मुझे थोड़ी तकलीफ सी होती है गुरुपा। मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या थी, हर चीज़ तो दिया गुरुपा। हमारे गुरुपा कहना नहीं चाहिए, लेकिन इनके माता पिता थे नहीं गुरुपा। हमारे जेठ जिठानी ने शादी की थी गुरुपा,
तो मेरे पापा ने बोला भी था कि हमें घर देखने के लिए दे दो। मेरी मम्मी ने लड़का देखा था और कहा अच्छा परिवार है, इनके बाप भाई भाभी बहुत अच्छे थे गुरुपा, वो आज भी अच्छे हैं गुरुपा, उन्हें हम कुछ भी गलत नहीं कहेंगे गुरुपा। हमारे जेठ तो बहुत ही अच्छे थे गुरुपा, अब नहीं रहे इस दुनिया में वो। तो गुरुपा उन्होंने अपना भाई का अच्छा भविष्य समझ के शादी कराई थी गुरुपा। भाई ऐसा निकलेगा गुरुपा, किसी को अंदर का पता नहीं होता गुरुपा, इसलिए हम उन्हें गलत कभी कहते ही नहीं, ना जिठानी को कहते हैं ना उन्हें कहते हैं गुरुपा। तो इन्होंने का घर भी नहीं था गुरुपा, 300 रुपये के किराए पे ये रहते थे गुरुपा। मेरे मम्मी पापा ने उनके भाई भाभी को देख के शादी कर दी गुरुपा। गुरुपा मेरे रहने की भी जगह नहीं थी गुरुपा। और फिर मैं जिठानी क्या रहती थी गुरुपा, तो जिठानी को भी इन्होंने बोला होगा। तो गुरुपा मैं ना फिर 2 साल अपने मैके रही गुरुपा। तो जिठानी ने बोला इनको कि तुम ले जाओ, तो इन्होंने लड़ाई झगड़े भी कर लिए गुरुपा, फिर मुझे मैके पहुंचा दिया। मैं 2 साल गुरुपा मैके में रही। मेरे मम्मी पापा को भी सुनना पड़ता था गुरुपा कि लड़की यहीं रहती है। मेरा इनके पास पैसे भी नहीं होते थे गुरुपा। फिर गुरुपा मेरा बड़ा बेटा हुआ तो मेरे पापा ने ही सब कुछ किया, डॉक्टर का इलाज वगैरह शुरू से पूरा आखिरी तक, 2 साल तक उसको पाल पोस के बड़ा किया, सब कुछ किया गुरुपा मेरे पापा ने मम्मी ने। तो गुरुपा उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने ही ये ज़मीन मेरे पापा ने ही खरीद के दी गुरुपा, क्योंकि ये रख करने ही नहीं चाहते थे कुछ। तो मेरे पापा ने ही खरीद के दी थी गुरुपा। अभी मेरे हम लोग इतने चालाक नहीं थे गुरुपा, उस समय इन्होंने ज़मीन अपने नाम करा ली गुरुपा, और आज भी वो उनके नाम ही है, वो करते ही हैं। तब भी हमने ये सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड के नाम ही तो है। अब ये पता नहीं इनका दिमाग कैसा होता जा रहा है गुरुपा। कल भी इन्होंने एक बात बोली, अब वो मकान बनवाया, सब कुछ किया गुरुपा। आज भी हम अपने पापा के दिए हुए मकान में ही रहते हैं गुरुपा। फील होता है गुरुपा कि मेरी बहनों ने तो कभी नहीं लिया कुछ, हमको ही मिला है खाली। तो थोड़ा अजीब सा लगता है कि सबको बराबर मिले। और हमारे पास छत नहीं थी, इसलिए मेरे पापा ने छत दिया हमें। मेरे पापा की बदौलत ही, मेरी मम्मी की बदौलत ही छत है गुरुपा। तो गुरुपा इन्हें सद्बुद्धि देना गुरुपा। मेरे मम्मी पापा को भी बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, गंदा बोलते हैं गुरुपा। वो माँ बाप है, सुनते हैं गुरुपा, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं गुरुपा, इसलिए वो सुन लेते हैं। इन्हें बस सद्बुद्धि दो गुरुपा कि किसी को नीचा ना दिखाएं, और इनके सही परिवार को भी कुछ समझें गुरुपा, सही दिशा देखें गुरुपा, गलत चीज़ें ना करें गुरुपा। ये सब चीज़ों का असर बच्चों पर भी बहुत पड़ता है गुरुपा। भगवान ने अगर हमारी जोड़ी बनाई है गुरुपा, तो उसको ही लेके चलो। भगवान ने कहीं कुछ सोच के ही तो हमारी आपकी जोड़ी बनाई, तो आप उसको लेके चलो। 10 जगह मुंह मारना गुरुपा, ये तो भगवान ने सिखाया नहीं ना गुरुपा। ये तो भगवान ने कभी नहीं सिखाया, ये तो गंदगी होती है ना गुरुपा। तो गुरुपा इनकी सद्बुद्धि दो गुरुपा। अपने से बड़ों की इज्जत करें, किसी को नीचा ना दिखाएं। अपने बच्चों तक को नीचा दिखा देते हैं गुरुपा, बड़े बेटे से बात नहीं करते। बड़े बेटे को मुझे गाली गंदी गंदी दे रहे थे। फिर बड़े बेटे ने उनको समझा रहा था, तो बोले तेरा, तो उसे भी मारने के लिए दौड़ रहे थे तो गुरुपा। फिर उसने बोल दिया कि आप मार लो, मार के करो क्या, लेकिन आप गलत हो, आप गलत बोले। बस गुरुपा उससे बात ही नहीं करते गुरुपा। उनके भी रिश्ते सुधार दो गुरुपा। बेटे ने मेरे कुछ गलत नहीं बोला गुरुपा। तो गुरुपा इनको पता नहीं किस चीज़ का इतना अहंकार है। मेरे बच्चे दोनों बहुत सुंदर सुंदर हैं गुरुपा। आपने जो मेरे बच्चे, आपने जो आपके बच्चे हैं गुरुपा, बहुत 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 सुंदर हैं गुरुपा, और बहुत अच्छे हैं गुरुपा। भगवान उनको, आप उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा, गलत राह ना पकड़ें गुरुपा। और मुझे समझते हैं गुरुपा। वो कभी कभी बड़ा बेटा गुस्सा आ जाता है गुरुपा, तो बोलता है थोड़ा, लेकिन बाद में वो अपनी जबान को लेके पछताता है गुरुपा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। जल्दीबाजी में वो कुछ भी बोल जाता है गुरुपा, लेकिन मन का साफ है गुरुपा वो। और अपने पापा का भी ध्यान देता है गुरुपा। अपने पापा का भी बहुत ध्यान देता है, कुछ लाता है तो अपने पापा को भी करता है, लेकिन उनके पापा को सद्बुद्धि नहीं आती गुरुपा कि यही बच्चे आगे जाके हम उन्हें जैसी परवरिश देंगे वैसे ही करेंगे ना। मेरा बेटा, दोनों बच्चे मेरे गुरुपा
मेरे बारे में सोचते हैं गुरुपा। मैं अपना सारा दिन जब से मैं मेरे बच्चे हुए गुरुपा, मैं अपना सारा समय अपने बच्चों पे ही देती हूँ गुरुपा, अपने पति पे और अपने बच्चों पे। मैं इधर उधर कुछ भी नहीं घूमती फिरती गुरुपा। आपने सब कुछ देखा है गुरुपा। मैंने थोड़े में भी एडजस्ट किया गुरुपा, थोड़ा ज़्यादा हुआ उसमें भी एडजस्ट हुआ गुरुपा, कम में भी बहुत एडजस्ट करके ही रहती हूँ गुरुपा। इसलिए गुरुपा के मेरे पति को सद्बुद्धि देना गुरुपा, उस औरत से पीछा छुड़ाना गुरुपा। अब आप देखो गुरुपा कि आपको अपनी बेटी का घर कैसे बसाना है गुरुपा। बस गुरुपा, और तो कुछ नहीं है गुरुपा। बस आपका शुक्राना है गुरुपा कि आप हमारे अंग संग रहते हो गुरुपा। मुझे आपका आभास होता है गुरुपा। सुबह मैंने ब्लैक तितली की केवल एक झलक देख पाई गुरुपा। गाय माता हमारे दरवाजे रोज आ जाती हैं गुरुपा। मैं लोई खिलाती हूँ गुरुपा। उनके मेरे अंकल हस्बैंड भी लोई खिलाते हैं गुरुपा। और बाद में मैं जब इनके अंकल हस्बैंड का लंच बनाती हूँ तो गाय माता की एक रोटी बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ गुरुपा, और ये खिला देते हैं गुरुपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा, गलतियों के लिए क्षमा करना गुरुपा, सही राह दिखाना गुरुपा। आपकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं है गुरुपा, और आप हमारे अंग संग ही रहना गुरुपा, अंग संग ही रहना गुरुपा। बस मुझे किसी भी चीज़ का दुख नहीं गुरुपा। बस अंकल हस्बैंड मुझे मान सम्मान नहीं देते, लोगों के सामने नीचा दिखाते हैं गुरुपा, और मेरी दूसरी औरतों से तुलना करते हैं गुरुपा। उन्हें अहमियत देते हैं गुरुपा, मुझे मान सम्मान अहमियत नहीं देते गुरुपा। इसी चीज़ का दुख है गुरुपा। बस उनकी ज़िंदगी में मुझे मान सम्मान और मेरी जगह उन्हें बताना गुरुपा, उन्हें मेरी अहमियत दिलाना सिखाना गुरुपा। बस गुरुपा, यही हमारी अरदास है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आज तारीख 24 जून 2025 सुबह के 8:30 बज रहे हैं और वार है मंगलवार, हनुमान बाबा जी का वार। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे बेटे और मेरी बेटी की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ब्रदर की मिसेस और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहना की हाजिरी है गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे छोटी बहना की गुड़िया और उनके हस्बैंड की हाजिरी गुरुपा आपके श्री चरणों में। गुरुपा, ये मेरे संपूर्ण परिवार की हाजिरी है गुरुपा आपके कर कमलों में गुरुपा। और आप मेरे परिवार के हर सदस्य के जाने अनजाने में हुए गुनाहों की क्षमा प्रदान करें गुरुपा। गुरुपा, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करें गुरुपा। उनसे भी अगर कोई भी जाने अनजाने में गुनाह हुआ है तो माफ़ करें गुरुपा।
क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा उनकी तरफ से। गुरुपा मेरे परमपिता परमात्मा, आप हमको निवाह के चलाएं। गुरुपा आप मेरे संपूर्ण परिवार की मति बने, उनके कर्म बने, उनकी सोच बने, उनकी वाणी बने, उनके कदम बने, उनसे सही कार्य कराएं। कोई गलत काम हमसे ना हो, सब आपकी रज़ा में ही हर कार्य पूर्ण हो, क्योंकि गुरुपा आपकी रज़ा में हम राजी हैं। मेरे पप्पा, मेरी माँ, आप ही माँ हो, आप ही पिता हो, आपके अलावा हमारे परिवार का कोई नहीं है गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि 40 दिन का अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर, तो गुरुपा आज ये मेरा 11वां अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। पता नहीं कल भी ऐसी नेगेटिविटी हुई कि कार्य, मैं बहुत कोशिश कर रही थी बट मैं सत्संग नहीं कर पाई। बाबा मुझे माफ़ करो मेरे बाबा, मेरे पप्पा, मेरी माँ का आंचल, मेरी माँ, मेरी माता रानी, सब आप ही हो, क्षमा करें गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि सॉरी संगत जी, सॉरी पप्पा। गुरुपा ने मुझे पिछले साल 2024 में खुद से जोड़ा, ऐसे माड़े समय में जब मैं मौत की कगार में थी। मेरे महाशिव ने, मेरे गुरुपा ने मुझे 3 बार मौत की कगार से मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाला, नव जीवन दिया। मेरे बच्चे के जो जीवन में भी आज गुरुपा हैं, तो 7 जुलाई 2024 से पप्पा अपने घर में विराजमान हैं और रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बेटे को भी जीवन दिया है। उसको उसके दोस्तों ने फंसाया, परंतु गुरुपा ने उसका हाथ पकड़ा है और उसको तकलीफ़ों से निकाल रहे हैं। उसका कार्य, जहाँ पे वो जॉब करता था, वो भी जॉब अभी वहाँ से उसको उन्होंने उस जॉब से भी वो निकाल दिया गया है। गुरुपा ने कहा कि उसको अच्छी जॉब दिलाएंगे, उसका फ्यूचर अच्छा करेंगे। तो सब मेरे परमात्मा आपके ही श्री चरणों में, ये जीवन आपका दिया हुआ है। बस मेरे दोनों बच्चों की फ्यूचर आपके श्री चरणों में है गुरुपा, आपको ही देखना है उनको। गुरुपा आपने बहुत अच्छी खबर दी। मेरी बहन और मेरे बहनों दोनों का लाइफ अब बहुत अच्छा है। उनका प्रॉब्लम जो था बहन का, वो पूरा हो गया है, ख़त्म हो गया है। आपने वो उसको न्यू लाइफ उसको भी ब्लेस की है गुरुपा। बस वो लोग अच्छे मिल के रहना, बस यही अरदास है गुरुपा। प्रेम से, उनका प्रेम ऐसा ही चलता रहे, कोई उनमें आपस में मनमुटाव ना हो, जीवन में खुशहाली रहे, उनकी बच्ची खुश रहे, उसको बेटा भी आप ब्लेस करें गुरुपा। एक बेटा चाहिए उसको, ब्लेस करो गुरुपा। उसका जीवन आपके श्री चरणों में है गुरुपा, उसका लाइफ। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 अनंत। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आप नव जीवन देते हैं गुरुपा। किसी की मदद करना गुनाह है गुरुपा। मैंने बिना फीस लिए बहुत बड़ा काम किया,
उनको जेल से बाहर निकाला, 3 बंदों को, परंतु आज वो लोग फीस का तो छोड़ो, जो उनके लिए जमानत में ठहरा था उस बंदे को भी वो कुछ पे नहीं कर रहे हैं और मैं परेशान हूँ। गुरुपा इतना धन दीजिए ताकि मैं उस जमानत वाले को पैसा दे सकूं मेरे जेब से। बस आपके श्री चरणों में बस यही अरदास है गुरुपा। अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा। बूढ़े लोगों की मदद करना गुनाह हो गया गुरुपा। आप सब जानते हैं गुरुपा, अपनी बच्ची को सब जानते हैं गुरुपा। पता नहीं मेरा उनका कौन से जन्म का कर्ज होगा जो आप वो इस रूप में इस जन्म में मैं पूरा कर रही हूँ। मुझे कोई गम नहीं है गुरुपा पैसों का, क्योंकि आप ही हैं, आप महाशिव हैं। आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने कहा कि तुझे मैंने घर ब्लेस कर दिया है, तुझे अब पैसों के लिए मांगना नहीं पड़ेगा हर एक से। तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। हर आशीर्वाद के लिए गुरुपा, जो आप दे रहे हैं, जो मेरे परिवार को आप ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। वर्क प्लेस में भी तकलीफ़ें ख़त्म करने के लिए गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। वर्क प्लेस पर जो मेरे साथ हो रहा था वो आपसे अनभिज्ञ नहीं है आप गुरुपा। मैं भी सबको मैंने माफ़ कर चुकी हूँ गुरुपा। आपने कहा था तभी मैंने उनको माफ़ कर दिया, पर अब माहौल आपने बहुत ठीक कर दिया है गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। 3 वेले भोजन देने का, ये अच्छी छत, अच्छे घर, अच्छा जीवन, ऐश की ज़िंदगी, इसके लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत शुक्राना गुरुपा। धन भी आ जाएगा आपके आशीर्वाद से, कोई गम नहीं है। तकलीफ़ें भी ख़त्म कर रहे हो आप, बस आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरुपा। हर वेले अंग संग रहने का, रोटी चाय प्रसाद में दर्शन देने के लिए, हर चीज़ जीवन में हर एक कार्य को पूर्ण कराने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जीवन के अंधियारे को उजाले में बदलने के लिए, जीवन में शांति प्रदान करने के लिए, जीवन में सारे दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, जीवन में हर नेगेटिविटी का अंत करने के लिए, सारी तकलीफ़ों को खुद में समेटने के लिए, हर जगह मेरी ढाल बनने के लिए, हर जगह मुझ पर अपनी असीम कृपा बरसाने के लिए गुरुपा बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे पप्पा। आई लव यू पप्पा। हर क्षण मेरे अंग संग रहने के लिए, अपने डिवाइन एंजल नंबर दिखाने के लिए। आई लव यू पप्पा। थैंक यू सो मच पप्पा। थैंक यू मेरे डिवाइन फादर। आई लव यू पप्पा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ
और इस सत्संग के दौरान संगत भाई बहन, अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। संगत भाई बहन मुझे माफ़ करें। और इस सत्संग के दौरान यदि जो भी सत्संग सुन रहे हैं मेरे संगत भाई बहन, उनकी कोई भी तकलीफ़ें हों, उनके उनके लाइफ में गुरुपा उनको ब्लेस करें। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक, एबंडेंट वेल्थ, उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें। वो अब्रॉड जाने की अगर प्लान कर रहे हैं तो वो पूर्ण करें गुरुपा। एजुकेशन वाइज सारे बच्चों की और सारे संगत भाई बहनों की अरदासें पूर्ण करें। अगर कोई कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हैं तो उनको बरी करें, उनके लाइफ को अच्छा करें। सब पर अपनी असीम मेहर बनाए रखें गुरुपा। सबकी अरदासें पूर्ण करें। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का जो प्यारा सा मंच है, राज भाई जी और लीना जी को आप खूब ब्लेस करें। उनको गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंट लीव, उनको वेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। उनकी सारी अरदासें पूर्ण करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत प्यारी सेवा देते हैं, उसके लिए भी उनका बहुत आभार लीना जी, राज भाई जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ और कल पुनः नवीन सत्संग के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शावा शावा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 तम अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जय जय मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा। Love you so much, love you so much. Thank you for everything. Thank you for this wonderful life. हर श्वास के लिए, हर क्षण के लिए कोटि कोटि नमन। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच।